Hello friends, hope you all are doing well. This is Navneet Misra, University of Hyderabad, and today I have come with the serious topic as you people have been discussing that how to clear UGC NET JRF exam in the first attempt and how to clear especially JRF, not only NET. So today I would like to welcome Nitesh Kumar, who is the topper of our University of Hyderabad Economics Department. He has secured the highest marks in the Economics NET JRF exam 2022 December session. So now I would like to welcome Nitesh. So please Nitesh, welcome. Nitesh, please come. So how are you, Nitesh? Fine, sir. And you? So hope there was a great year for you. And for time being, I would like to tell you, Nitesh is a PhD scholar, and it would be better if he introduced himself. So now I would like to ask Nitesh. So please introduce yourself, Nitesh. Hello, guys. Hello, viewers. I am Nitesh, and just in this PhD session, I got seat here in University of Hyderabad, and I had cleared JRF in this session only. So I cleared JRF with more than 75% marks. Oh, and, that's the great. And also I secured 82 questions correct in out of 100 in economics particularly. Oh. And in paper, especially paper 1, I didn't focus too much in paper 1, but I focused much more on economics part, because that was I wanted to build my strength by focusing on my economics part, and that's it. So Nitesh, you have done your masters from here. Yes, sir. So you are, alumni of this university. तो मित्रों, कुल मिला के बात ये है, यह हमारे साथ आज नितेश जी हैं. इनका कहना ये है कि अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन पेपर, राइट. इनका जो जेआरएफ हुआ है वो उनके अपने बदौलत के हैं. डजंट मैटर इधर यू आर फ्रॉम सोशियोलॉजी और यू आर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स. ये इकोनॉमिक्स है, मैं भी इकोनॉमिक्स है, एंड वी बोथ आर रिसर्च स्कॉलर. तो आज बेसिकली वी विल फोकस ऑन हाउ टू स्ट्रेटजाइज आवर पेपर 1 and how to strategize paper 2, and we will discuss what should be the correct procedure, correct method, and the recommended books that we will listen from our the toppers. So नितेश, मैं यह जानना चाहूँगा without going much deeper, अगर एक लाइन में पूछा जाए इस एग्जाम में बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या फिर पास्ट ईयर पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसका आप सीक्वेंस कैसे बनाएंगे? बिकॉज व्हेन पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, so they got stuck. Shall I follow the videos? Shall I see the WhatsApp, PDF, and so many Telegram channels are there? Or shall I look upon the toppers of the notes? Or shall I go through the recommended books, what we will be discussing, Ichela Huja or Don Vispusar, Manki, whatsoever. So how would you, that आप उनको क्रमबद्ध तरीके से कैसे सजाएंगे इनके इम्पोर्टेंस को देखते हुए? Yeah, it's very crucial thing to know for the JRF, especially JRF aspirants, those who want to crack JRF in this, especially one or first or second attempt. The thing is that we need to understand the chronology, like how we have to focus on our from where to start. That is the first point it takes in anyone's mind. Yeah, because the preparation of NET JRF itself starts from when you enter in your graduation. Because that is very crucial point, guys. Because those who want to prepare for UGC NET JRF, they especially used to focus on they need to have very concept clarity on their particular topic, especially from undergraduation, and then the major, since the major portion is from undergraduation, right? So the master's portions is slightly also very important, but the preparation itself starts from undergraduation. Like we have to focus especially our the books, like from microeconomics, each people used to read, like Robin Philpindick or this Achal Ahuja Advanced Economic Theory. So shall we start from the books itself or the past year paper, or what would you suggest? First, because most of the viewers or most of the people who so in masters, they are supposed to write an exam. So for the masters people, so what would you recommend? What was your approach? Either past year paper, or looking directly go to the videos how to clear JRF, what books shall we go through, or looking upon again the graduation books what we have done? See, the more you look upon to your graduation books, the more it will be beneficial to you to, because that is our base. That is our base. Yes. So since this, if just you have to explain for the this masters guys. So masters students, we need to suppose that they have some good basic understanding. They have read some basic books in their graduation. Yes, obviously. So starting from this masters level, if you have read some good books in your graduation, so it is supposed that you have good conceptual clarity. Yes. So if you have that much of clarity, then after you just go through the
past year previous Okay. papers. Given that basics you know. Yeah. Okay. That should But be the criteria. if you don't know the basics, if you have some lag in your conceptual clarity, Okay, okay. then again I will suggest you to go to the these basic books, because they are the base. Okay. So first of all, focus on the books, and then past year papers, and once that will make some confidence in you that, oh, I have read this particular topic and I can solve this particular question from this topic. So Acha, before going much deeper into, we'll see the paper 2, paper 1 books and all. So most of you would be struggling that paper 1 how to clear, paper 2 most of the people know that this book that we will be coming, and he will also give the list of the books that what we have to follow. So Nitesh, let's start paper 1. Doesn't matter what was your score. If anybody is scoring 30 plus, it is very good score, and it really helps in getting into JRF. एंड पेपर 1 में क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इधर उधर से आ जा रहे हैं, कभी करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, कभी गवर्नेंस के, कभी पॉलिटी के आ रहे हैं, और कभी कभी क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं नोबडी नोज. तो चीज़ों को अगर कंसोलिडेट किया जाए तो व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन फॉर पेपर 1. तो यहाँ से गाइज आगे आने वाले 2-3 मिनट में नितेश जी हमें बताएंगे कि पेपर 1 के लिए क्या सही तरीका है. क्या तो पास्ट ईयर पेपर से शुरू करें, क्योंकि होता क्या है पेपर 1 में वी हैव नेवर सीन एनी काइंड ऑफ कोर्स इन आवर मास्टर्स इवन, एंड डायरेक्टली वी सी इन द एग्जाम, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो पेपर 1 के लिए क्या तरीका किया जाए, क्या बुक्स किया जाए, या कुछ वैसे यूट्यूब वगैरह चैनल हैं या कुछ टॉपर्स वगैरह हैं, तो आप प्लीज़ हमारे दर्शक दीर्घा को बताएं. तो गाइज लेट्स लिसन टू हिम फॉर द पेपर 1 UGC NET JRF. So this is also one of the very important thing to focus on paper 1, because whatever I did, I don't know what other people used to do. Yeah, what you but did. Yeah. What my strategy was, I just purchased a book called KVS Madan. KVS Madan book UGC NET And paper 1. And on that, in that particular book, I just divided all the chapters and make the blocks and separated all the chapters. Like there are 10 chapters. Okay. Starting from the teaching aptitude, research aptitude, information communication, technology, math, methodology and reasoning, all. people environment, and higher education. So I had separated all those from that book. And I read that book 1 or 2 times and made some previous whatever the questions were there at the end of the chapter. So I focused particularly on that book only. And after that I just went to the previous year papers, and I found that this book became very beneficial for me to practice. And so after reading basics of that book, then you goes to the go to the past year paper. Yeah, because when I first मैंने शुरू में गया था previous year papers में, मैं देखा था, लेकिन पल्ले नहीं आ रही थी कि क्या पढ़ना, समझ में नहीं आ रहा था क्या कर क्या रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, क्या टीचिंग एप्टीट्यूड. So better you thought let's have a quick glance of the book. I thought that no, I should just focus on basics, what are the basics, and then after go to the previous year papers. तो पहले आप सरसरी निगाह से प्रीवियस ईयर पेपर देख लें, बस उतना डीप स्टडी में नहीं जाना है. यू गो थ्रू द फास्ट ईयर पेपर वेरी क्विकली, डोंट गिव मोर देन 10-20 मिनट्स फॉर 1 ईयर पेपर, एंड आफ्टर लुकिंग एट 4-5 years ऑफ पेपर, देन यू अगेन गो टू द KVS Madan बुक एंड फॉलो अदर थिंग्स. हाँ, उसके बाद फिर क्या किया आप? उसके बाद that's it. This is my strategy till the end of the exam. पेपर 1 बस उसी चीज को बार बार मॉड्यूल्स को 10th सब्जेक्ट को रिवीजन करना बार बार. One thing I would like to make you notice is that कि इसमें बहुत सारे डायनेमिक चीजें हैं. जैसे बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं पेपर 1 में. उससे क्या करना, जैसे पीपल इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं, वो एक सिविल सर्विस में एस्पिरेंट भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. या फिर हायर एजुकेशन में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप UGC NET एस्पिरेंट हैं, आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. बट उसमें भी बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किस यूनिवर्सिटी को कौन सा अवार्ड मिला है, और ये NIRF का तो ये सब कवर कैसे किया जाए, देयर इज एनी सोर्स? तो इसके लिए ये है कि कंटिन्यूअस आप डे टू डे करंट अफेयर से जुड़े रहिए, कि न्यूज़पेपर से जुड़े रहिए, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं. तो फर्स्ट थिंग गाइस, न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1. 3-4 क्वेश्चंस यू कैन काउंटर इन एग्जाम हॉल विद द हेल्प ऑफ पेपर 1. KVS Madan and past year paper. 3 things is very crystal clear behalf of Nitesh sir. First is KVS Madan book, second is past year paper, and third is newspaper. Yeah, the basic. Any other things in paper 1? Then after that we will move to paper 2. Like often जो स्टूडेंट्स जहाँ पे फंसते हैं वो थोड़ी सी मैथ्स और रीजनिंग का भी होता है. हाँ, उसके लिए क्या किया जाए? और मैथ तकरीबन कितने क्वेश्चंस लगभग आते हैं इस सेक्शन से, एप्टीट्यूड और रीजनिंग से? 10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते हैं. जैसे 10 से 12 क्वेश्चंस. 10 से 12, क्योंकि रीजनिंग का अलग सेक्शन होता है और मैथ्स का अलग. 5 क्वेश्चन मैथ्स और 5 क्वेश्चन रीजनिंग से आता है. तो
इसके लिए आपको जो है मैथ्स और रीजनिंग से घबराना नहीं है, ये हो जाती हैं, बट इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक्स जो 9, 10, 7, 8 क्लास की जो कोई बुक वगैरह है क्या? प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये सारी चीजें कहीं से देख लेना है, उसको आप कहीं से भी देख सकते हैं। वैसे मदान नेट पे है, हाँ मदान बुक में है वो, लेकिन उतनी डीप लेवल का नहीं है जिससे आप लेवल का आता है। जिस लेवल अभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, क्योंकि रीजनिंग का लेवल तो ठीक है, लेकिन मैथ्स वाला लेवल थोड़ा बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें पेपर 1 के लिए दैट विल सफाइस योर प्रिपरेशन आई थिंक। तो गाइज प्लीज नोट इट डाउन। नाउ आई वुड लाइक टू समराइज द नितेश सर द टोन व्हाट ही सेड इन वन लाइन। जस्ट यू हैव टू फोकस 3-4 थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज पास्ट ईयर पेपर, तकरीबन 6-7 सालों का अवेलेबल है। अच्छा, ये पेपर कहाँ अवेलेबल होंगे? ऑनलाइन अवेलेबल है? पेपर 1 की ऑनलाइन अवेलेबल है और केवीएस मदान बुक में भी दिया हुआ है। हाँ, और हमने पर्टिकुलरली मैंने कहीं सोर्सेज से डाउनलोड करके एक्युमुलेट भी कर लिया। अच्छा ठीक है, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक्स में। तो पेपर 1 के लिए पास्ट ईयर पेपर, केवीएस मदान बुक और कंटिन्यूअस आपको करंट अफेयर्स देखना है, और थोड़े से क्वांट और रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल हो गए या कहीं से किसी भी बुक से आपको थोड़ा रिवीजन करना है। एट द सेम टाइम आप पास्ट ईयर पेपर देखते रहे कि दीज थिंग्स दे आर आस्किंग, सो आई हैव टू फॉलो दिस, अदरवाइज आप डायग्रेस नहीं है। तो पेपर 1 को ज़्यादा हवा नहीं बनाना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पेपर 2 भी है और उसमें 100 क्वेश्चंस हैं। पेपर 1 कंसिस्ट ऑफ ओनली 50 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स एंड पेपर 2 कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। So guys, now we will see that how to approach paper 2. This was all about paper 1. Now we will see how to approach for paper 2. तो नितेश जी, हम लोगों ने पेपर 1 का देख लिया. Now we will see paper 2. Paper 2 is the most crucial part. This can make you, this can mar you. Yeah. Paper 2 means simply economics. So guys, today we are just discussing the UGC NET economics JRF. Yeah. Not other subject. तो पेपर 1 इज कॉमन फॉर एवरी पेपर, एवरी सब्जेक्ट्स। तो पेपर 2 को बेसिकली कैसे अप्रोच किया जाए, हाउ टू अप्रोच फॉर पेपर 2? इफ यू सी द प्रिपरेशन, आई थिंक 80% ऑफ द टाइम वी गिव फॉर द पेपर 2, आई थिंक हार्डली 20% वी गिव फॉर पेपर 1. सो दिस बिकम्स वेरी क्रूशियल, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू स्टार्ट, एंड व्हाट आर द बुक्स, व्हाट आर द सेक्शंस दैट वी कैन सेग्रीगेट. सो पेपर 2 नाउ वी विल सी फ्रॉम नितेश सर. सो नितेश जी, पेपर 2 के लिए क्या किया जाए? As I told you earlier, like if you have read, if you have some basic understanding of your undergraduation level things, that will suffice your preparation. Okay. But that will only suffice your preparation for NET only. NET. But what about JRF? अपने को तो JRF चाहिए bro. Yeah. So JRF के लिए थोड़ी सी आपको intensive reading चाहिए. Intensive in the sense कि आपको थोड़ा broad देखना होगा. अच्छा, कवर करना पड़ेगा. पूरी जो एक टॉपिक है, जो ऐसा कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन आते भी हैं, तो उन सारे टॉपिक्स को आपको छूना होगा. अगर ऑलमोस्ट मान लीजिए कि आप 60-70% टॉपिक्स छुए हैं, तो आपको उतना ही नंबर आएगा जिससे क्वेश्चन आएंगे. अगर मोर देन आप 90% ऑफ द टॉपिक को टच कर लिए हैं, उससे अंडरस्टैंडिंग हो गई है आपकी, तो डेफिनेटली विल बी गेटिंग JRF. तो मोस्टली किस तरह से सब्जेक्ट को कैसे बांटा जाए, मेनली कौन कौन से सब्जेक्ट अप्रोच किया जाए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज सेम नहीं रहता है. इफ यू सी द लाइक पीपल आर वेरी गेट डिस्टर्ब व्हेन दे सी द इकोनोमेट्रिक्स. सो इकोनोमेट्रिक्स से 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, और उसके लिए आप 1 महीना इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ सकते हैं. तो इस तरह से जो ये टाइम वेटेज का कंसेप्ट है, इसमें कैसे इसको फंसाया जाए इस गेम में? इसमें यह है कि JRF के लिए माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल ट्रेड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ये 4-5 जो चीजें हैं, उसमें आपको काफी इंटेंसिव पढ़ाई करनी होगी. सारे टॉपिक्स गाइस, एज नितेश इज टेलिंग दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये जो 5 रत्न हैं, दिस कैन रियली अफेक्ट योर रिजल्ट. और तकरीबन 80% क्वेश्चन इसी से आते हैं. और यह 5 में आपको इंटेंसिव रीडिंग करना होगा. यू हैव टू रियली डिग डीपर डाउन द बुक. और इसके लिए नाउ ही विल सजेस्ट यू द बेस्ट बुक. यू आर नॉट सपोज टू रीड एवरीथिंग इन द मार्केट. सो वट एवर ही विल सजेस्ट, so you please follow that. Now we will see the topic wise or the subject wise books that we have to follow apart from the past year paper. Past year paper is Ramban, that is compulsory, that you cannot ignore. Now coming to the books, so now let's see what he suggests for the books. Like माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो बेसिक किताब है, जो बेसिक बुक है, वो एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है HL आहूजा बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स, या तो एडवांस वाला लें या तो प्रिंसिपल वाला लें, कोई भी चलेगा. उसके लिए जो लोग ग्रेजुएशन में रूबेनफील्ड पिंडिक पढ़े हैं, वो भी बहुत अच्छा बुक है, या कुर्सियानिस भी लोग पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छी किताब है. लेकिन HL आहूजा एक ऐसी बुक है जिसमें
पूरी की पूरी जो टॉपिक जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए A to Z पूरा वही सिलेबस ही वही पूरा है। वही सिलेबस है। तो अगर अच्छा ये बताइए नितेश जी, अगर एच एल आहूजा ना पढ़ के कोई और बुक पढ़ा जाए या कोई बुक और ना पढ़ के सिर्फ एच एल आहूजा पढ़ा जाए तो ये है क्या, चलेगा काम? अगर कोई बुक आप नहीं भी पढ़ रहे हैं अगर एच.एल. आहूजा को आप थोरली फॉलो कर रहे हैं एनफ, जो एच.एल. आहूजा चूंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए है, हाँ। और माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमको ये देखना होगा कि मुश्किल से 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, काफी मेजर पोर्शन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। 100 में तकरीबन 20%। हाँ, मतलब 15 से 20% क्वेश्चन आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। और अगर आप एच.एल. आहूजा एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी या सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर फोकस करते हैं तो दैट विल डेफिनेटली सफाइस योर प्रिपरेशन। और लेकिन अगर क्वेश्चनिस पढ़ते हैं या फिर आप वेरिएंट पढ़ते हैं या फिर रोबिनफील्ड पेंडिक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो टॉपिक जो काफी अच्छे से दिया है। अच्छा। लेकिन नेट जेआरएफ के लिए हमको उतना ये पढ़ना नहीं है, उसमें क्वांट और मैथमेटिकल ज्यादा है और हमें थियरी पोर्शन पे भी कमांड रखना है। थियरी पोर्शन। तो अगर दो बुक, जहां तक मेरी समझ है, मैं भी इकोनॉमिक्स का हूं और थोड़ा बहुत मेरा भी है पकड़ इस पे, तो आई थिंक एच.एल. आहूजा शुड बी सप्लीमेंटेड बाय पेंडिक रूबेनफील्ड। और वेरिएंट यू गाइज हैव ऑलरेडी रेड इन योर ग्रेजुएशन, क्योंकि आप मास्टर्स में लिख रहे हैं, एंट्रेंस वगैरह लिखे हैं तो ग्रेजुएशन में कर चुके होंगे वेरिएंट। तो पेंडिक रूबेनफील्ड और एच.एल. आहूजा, दिस इज एनफ फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ कमिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके लिए सर क्या किया जाए? मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब थोड़ा सा हमको ये समझना हो, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए पर्टिकुलरली कोई ऐसा बुक नहीं है हमारे पास जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए काफी हेल्पफुल हो। फिर और लेकिन अगर आप एक बुक को फॉलो करते हैं तो बहुत ऐसे पोर्शंस होते हैं जो छूट जाते हैं। अच्छा। जैसे मैंने जहाँ पे पढ़ा था, जैसे ISLM जो हम लोग पढ़ते हैं, वो जैसे ISLM में IS कर्व का शिफ्टिंग और उसका पॉलिसी इंप्लीकेशन वो काफी होता है। जैसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि LM कर्व का स्टीपनेस और IS कर्व का स्टीपनेस, उससे क्या इम्पैक्ट होगा, इनकम डिटर्मिनेशन और इंटरेस्ट रेट कैसे चेंज होंगे। तो उसके लिए मैंने फोकस किया था, डनबर्स फिशर की एक बुक है ISLM मॉडल और उसके पॉलिसी इंप्लीकेशन के लिए, मैंने उससे फोकस किया था। और मुझे वो फोकस करने के बाद ऐसा लगा कि मुझे अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने भी सारे क्वेश्चंस ISLM और उसके सारे डॉर्मेंस फिशर सारे मतलब मैं कवर कर लेता था। अब दूसरे की जो उनका स्ट्रेटजी हो मैं नहीं जानता। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो मैक्रो का इतना सारा टॉपिक्स है, इफ यू सी दैट मनी बैंकिंग हो गए, सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हो गए, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन हो गए, मल्टीप्लायर हो गए, ISLM हो गए, जितने भी हैं, तो अगर समग्र रूप से इफ यू हैव टू फॉलो द वन बुक और टू बुक, क्योंकि सारे किताब को पढ़ना इज क्वाइट इम्पॉसिबल, तो एक दो बुक्स को क्या आप रैंकिंग देंगे, कौन सी बुक सबसे अच्छी रहेगी? जैसे लोग पढ़ते हैं मैनक्यू की बुक, ग्रेगरी मैनक्यू। हाँ, ग्रेगरी मैनक्यू की बुक है, वो भी काफी अच्छी बुक है और डेफिनेटली स्टैंडर्ड बुक है, उसको पढ़ना चाहिए और वो अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनहेंस करता है। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जैसे इनकम डिटर्मिनेशन जो होती है पोर्शन क्लोज्ड इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी में, उसके लिए जो मैंने फोकस किया था, काफी ल्यूसिड वे में दिया है, वो एक DN द्विवेदी की बुक है। DN द्विवेदी, हाँ। तो उसमें अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जिनका नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग पर्टिकुलरली और इनकम डिटर्मिनेशन। तो मैंने DN द्विवेदी की बुक से वो फॉलो की थी, और हालांकि मैंने डॉनबर्स फिशर से भी फॉलो किया था, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा DN द्विवेदी में जो पोर्शन दिया है। तो नेट जेआरएफ में जितने भी क्वेश्चंस आते थे वो मैं उसको सॉल्व कर लेता था उससे। अच्छा, तो DN द्विवेदी से आप इनकम डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर पढ़ लें। और फ्रेंड्स, नो नीड टू परचेज ईच एंड एवरी बुक, आई विल प्रोवाइड द PDF ऑफ दिस आल्सो बुक, हु इज कंफर्टेबल विद द सॉफ्ट कॉपी विल सेंड यू द PDF। और आपके दोस्त से आदान प्रदान से किताब आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई द्विवेदी रखा है, कोई आहूजा रखा है, कोई मैनक्यू रखा है, तो 2 दिन आप उसका बुक ले, 2 दिन आप उसको दे दे। इस तरह से जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसा नीतीश सर बता रहे हैं, आप उसके नोट्स बना लें। और नोट मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा? ये महाभारत, रामायण, कुरान और बाइबिल आप नहीं पढ़ रहे हैं। दिस इज एग्जाम दैट देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन फॉर JRF। चलो आपका नेट हो भी गया और JRF नहीं हुआ 1-2 मार्क्स से, तो आप रियली पछताओगे, यार थोड़ा सा नोट्स वगैरह बना लिया रहता तो रिवीजन में सही रहता। तो हमने देखा कि माइक्रो में क्या करना है। मैक्रो में एज ही सजेस्टेड कि DN द्विवेदी की बुक है, मैनक्यू की बुक है और फिशर की बुक है। और कुछ मनी बैंकिंग वगैरह चैप्टर वगैरह में देखें तो आप एच.एल. आहूजा की भी बुक आती है। एच.एल. आहूजा वो रामबाण है, वो मतलब प्रिय बुक है और सर्वज्ञ है वो बुक। एच.एल. आहूजा कुछ नहीं समझ में आए तो एच.एल. आहूजा पढ़ लो, सिंपल कंसेप्ट है वो, नेट तो निकल ही जाएगा। तो ये रहा हमारा मैक्रो का। तो फ्रेंड्स, दैट वी हैव सीन माइक्रो, मैक्रो। अब आता है इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी और डेवलपमेंट। तो यह 3 चीजों के लिए ये बुक्स बताएंगे और करेक्ट स्ट्रेटजी। सो नितेश, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर द इंडियन इकोनॉमी? दैट इज द आई थिंक हेडेक फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो इंडियन इकोनॉमी का क्या अप्रोच रहा आपका? Like Indian economy should not be taken as a headache. First of all, I would like to it is a fun. Yeah, it should be a fun. And for that, you can first of all go for the previous year paper of Indian past economy. year paper. हाँ। क्योंकि पास्ट ईयर पेपर अगर आप जाइएगा तो पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक है। और इंडियन इकोनॉमी में हमको ये चीज ध्यान रखना है
कि पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन कंसेप्ट जो है वो जहां से वो क्वेश्चंस आता है वो डेफिनेटली रिपीट होता है। जैसे थियरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का आपको क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर इन्फ्लेशन वगैरह क्वेश्चन आएगा, तो वो सारी चीजें जो है कंसेप्ट डेफिनेटली रिपीट होता है, लेकिन वो टॉपिक सेम रहेगा, क्वेश्चन थोड़े अंतर रहेंगे। तो हमारा मेरा स्ट्रेटजी पर्टिकुलरली ये था कि मेरे पास मिश्रा एंड पुरी की बुक थी और दत्त एंड सुंदरम की बुक थी, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे गया और देखा कि कौन सा टॉपिक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से मैं रेफर किया बुक को और अपना नोट्स बना लिया, और जिसके कारण मेरे सारे टॉपिक्स जो है मैंने उसको कवर कर लिया, एक टॉपिक आपने कवर कर लिया। हाँ, थोड़ा सा डायनेमिक चीजें ये रहती हैं कि डेटा थोड़ा सा ये हो जाता है कि अच्छा, बजट और सर्वे इज नॉट एनफ। नहीं, बजट एंड सर्वे इज दैट मच नॉट एनफ, बिकॉज like 1 or 2 questions used to come. Okay. Like बजट से कि कितना परसेंट किस सेक्टर को एलोकेट हुआ, मैक्सिमम किसको गया, मिनिमम वो तो पीपल जनरली नो कर लेते हैं। या फिर इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन एक आ जाता है कि ग्रोथ रेट क्या रहा, या फिर ये कौन सी इंस्टीट्यूट कितना ग्रोथ रेट फोकस किया, हाँ, या फिर कितना हमारा किस कंट्री के साथ ज्यादा एक्सपोर्ट रहा, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स, ये भी काफी। तो ये सारे आपको एनालिटिक्स देखने होंगे पास्ट ईयर पेपर के। पास्ट ईयर तो मिश्रा एंड पुरी अगेन करंट अफेयर्स हैज गुड वेटेज इन इंडियन इकोनॉमी, जीएसटी से क्वेश्चंस आ गए, कुछ नए लेजिस्लेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, कुछ ऐसा आया जो बैंकिंग रिफॉर्म्स वगैरह हुए, दैट यू हैव टू लुक अपॉन। वो एक टॉपिक इसका ये है कि आप डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो वो पोर्शन होता है इंडियन इकोनॉमी खास तौर पे, वो उसमें बहुत ऐसे डायनेमिक चीजें रहती हैं, जैसे रेट्स जो हमारे होते हैं, डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो, तो सेंसस वाला पोर्शन, डेमोग्राफी एंड सेंसस, इसको भी देखना होगा। तो उसके लिए आपको वेरियस सोर्सेज पे जाना होगा, एनएसएसओ के, सीएसएसओ के साइट पे जाना होगा, ऑफिशियल डेटा को भी देखना होगा, ऑफिशियल डेटा को देखना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। अच्छा, तो गाइस जस्ट लेट मी समराइज इंडियन इकोनॉमी के लिए आपके पास मिश्रा एंड पुरी बुक है तो बहुत सही है, और 3-4 बुक्स ना पढ़े, उमा कपिला है मार्केट में, दत्त एंड सुंदरम है, मिश्रा एंड पुरी है, एक विवेक सर की बुक आ गई है, रमेश सिंह की बुक है, तो आई थिंक रमेश सिंह है तो ठीक है, जल्दी जल्दी देख लें, ऊपर रिवीजन के लिए वेरी गुड बुक है। मिश्रा एंड पुरी को फॉलो करें एज ही हैज बीन डिस्कसिंग, ये बुक ये फॉलो किए। उसके बाद आप न्यूज़पेपर को फॉलो करें, करंट अफेयर्स को फॉलो करें, और पास्ट ईयर्स पेपर में जो भी आए हैं, एनएसओ आए हैं, सीएसओ आए हैं, एनएसएसओ आए हैं, उनके ऑफिशियल साइट्स को जाएं, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास जाएं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएं, ऑफिशियल साइट को गूगल करें, और इवन की फर्स्ट पेज से होम पेज पे जाने से एक आध क्वेश्चन आ जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट को देखें, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को देखें, पॉवर्टी को देखें, अनएम्प्लॉयमेंट को देखें, तो एक सीक्वेंस आप टॉपिक तैयार कर लें, व्हाट आर द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम द पास्ट ईयर पेपर, एंड यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। So that was for the Indian economy. Now mostly 2-3 topics are left, that is development economics, growth and development, international economics, and public finance, and others में public finance, econometrics, blah blah blah। तो चलिए नितेश जी, इस 2-3 को आप जल्दी जल्दी बता दीजिए, और हम दर्शकों का समय नहीं जाया करना चाहेंगे क्योंकि इनको जेआरएफ के लिए पढ़ना होगा, अभी बैठ के वीडियो देखेंगे हमारा, तो हाउ दे विल प्रिपेयर। तो देखिए, नाउ कमिंग टू द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए बस कुछ नहीं करना है, 5-6 टॉपिक है, मुश्किल से 6-7 मान लीजिए कि टॉपिक है, जो आप अगर जान गए, उसको थोरोली पढ़ लिए, उससे कहीं से बाहर क्वेश्चंस नहीं आए। बुक्स वगैरह क्या है? बुक्स जैसे डोमिनिक सल्वाटोर की जो बुक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डोमिनिक सल्वाटोर इज बाइबल। उसमें जो मेन टॉपिक्स है उसको आप नोट कर लीजिए, जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 8-10 टॉपिक है, आप नोट कर लीजिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए जो टॉपिक्स मैं बता रहा था कि जैसे आप मर्केंटिलिज्म से स्टार्ट करके हेक्सर-रोलिन थ्योरी, स्टॉल-प्लस-इमल्सन थ्योरी, रिब्जिंस्की, हाँ, ये 4-5-7 ऐसे टॉपिक्स हैं, डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। और एक और जो काफी स्टूडेंट्स को परेशान करता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड, उसका इलास्टिसिटी और टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो क्वेश्चन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को जो है आपको देखना होगा कि हाँ, टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे इलास्टिक है, या फिर स्मॉल कंट्री के इसमें टैरिफ लग रहा है तो किस प्रकार से वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो चेंज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, इन सब हॉट टॉपिक्स को हम कहाँ से मतलब पता करें, ये है इंपॉर्टेंट, ये नहीं है? आप बस वही रामबाण है कि आप पास्ट ईयर पेपर, अगेन स्टोरी स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द पास्ट ईयर पेपर। जो टॉपिक दे आर आस्किंग, दैट यू अगेन नोट इट डाउन, यू गूगल, यू रीड फ्रॉम बुक्स, मेक द नोट्स। हाँ, तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ज्यादा नहीं करना है, पास्ट ईयर पेपर देखना है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए सर ने बताया कि डोमिनिक सल्वाटोर पढ़ना है, नन अदर बुक, राइट? नन अदर। तो इट वाज अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड, और उसके बाद है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये काफी एक बड़ा पोर्शन है, इसमें भी आई थिंक माइक्रो के बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही वेटेज है, क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। इसमें भी अगर आप 10 से 12 जो मॉडल्स हैं
ओके ओके, उनको आप फोकस कर लेते हैं तो हमको लगता है कि आपका 80% ऑफ द काम डन हो जाता है, स्पेशली ग्रोथ एंड डेवलपमेट। हाँ, मतलब हो गया बैलेंस ग्रोथ थ्योरी, अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी। जैसे यहाँ से भी आप जो एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स और ऊपर से जो है आपका बैलेंस ग्रोथ, अनबैलेंस ग्रोथ, पॉपुलेशन माल्थस थ्योरी, माल्थस थ्योरी, तो ये सारी चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसी से आता है और इसी से घुमा फिरा के Nitesh, I have also observed that in most of the questions they are asking match the following in growth and development. This theory was given by this, this book was written by this, और इनमें डीप ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, कौन थ्योरी क्या लिखा एंड दिस थ्योरी इज ऑल अबाउट व्हाट। तो वो उसके लिए मैं एक बताना चाहूंगा कि आप जैसे आप एक क्रोनोलॉजी के अनुसार पढ़ते हैं। अच्छा। जैसे पहले आप पढ़ते हैं एडम स्मिथ को, रिकार्डो को, या फिर उसके मार्क्स को पढ़ते हैं, तो एक क्रोनोलॉजी बनाते चलिए और उन्हें कौन सा बुक लिखा है, किस ईयर में लिखा है, उसको भी नोट करते चलिए। तो जो भी आपको कहीं मिले, चाहे आप सेमिनार अटेंड कर रहे हो, कहीं वीडियो देख रहे हो, कहीं कुछ मिले, कोई बुक दिख गया, कोई थियरी का नाम दिख गया, उसका ईयर का नाम लिखे, बुक लिखे, मैच द फॉलोइंग वगैरह में और क्रोनोलॉजी सजाने में वेरी दे आर वेरी हैंडफुल। और ये एक आजकल का ट्रेंड चल गया है कि पास्ट ईयर पेपर्स में आप देखिएगा कि मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी, बुक्स का कौन बुक किस समय पब्लिश हुआ। ये यूजीसी नेट स्पेशली अगर जेआरएफ लेना चाहते हैं उनको थोड़ा सा ये रटना पड़ेगा, और जो नेट वाले हैं तो पढ़े रहते हैं, ऊपर से काम चले जाएगा। तो बुक्स इसके लिए आप सजेस्ट नहीं किए? बुक इसके लिए मैंने जो बुक पढ़ी थी, मेरा स्पेशली इसका नोट्स है, जैसे मैंने थर्लवाल से पढ़ी थी, एपी थ्रिलवाल और ये एमएल झिंगन से भी पढ़ते हैं लोग। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए वही पास्ट ईयर पेपर। आई थिंक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको इंटरनेट का काफी हेल्प लेना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा। 2 टॉपिक और काफी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जैसे स्पेशली ग्रोथ थ्योरीज में हम लोगों को जानना होगा, जैसे सोलो नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल और हैरोडोम मॉडल। अच्छा, ये 2 इससे क्वेश्चंस आना ही आना है, 2-3 क्वेश्चंस इससे आना ही आना है। जैसे सोलो ग्रोथ मॉडल में पॉपुलेशन या सेविंग रेट चेंज होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है कैपिटल आउटपुट रेशियो पे, या फिर हैरोडोम मॉडल में ये वारंटेड ग्रोथ रेट, तो क्या होगा, तो इसको थोड़ा डीप से देखना होगा। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देखिए अगर आपको जेआरएफ लेना है तो देख रहे हैं, देखिए कितने तेज आदमी है, नेट का भी बता दे रहे हैं, जेआरएफ का बता दे रहे हैं, अब काम आपको करना है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए थ्रिलवाल बुक हो गया और एमएल झिंगन बुक हो गया। अब हम आखिरी पड़ाव पे हैं, तो हमारा इकोनोमेट्रिक्स, पब्लिक फाइनेंस एंड अदर्स जो छिटपुट साइड टॉपिक रह गए। सो व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर दैट एंड द बुक्स? पब्लिक फाइनेंस के लिए जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी थी वो आर.के. लेखी की बेसिक बहुत बढ़िया बुक है। आर.के. लेखी इंडियन है, वो हिमालयन पब्लिकेशन का है। हाँ, कल्याणी और हिमालयन का है। और मसग्रेव भी बहुत अच्छी बुक है। तो मैंने कुछ पोर्शंस पढ़ी थी मसग्रेव से, लेकिन ज्यादातर मैंने फोकस किया था आर.के. लेखी पे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जो पीगू डाल्टन और मसग्रेव का है, उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। थियरी ऑफ टैक्सेशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। टैक्सेशन का आप बनाना होगा क्रोनोलॉजी की, कौन टैक्स पहले आया, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट तो टैक्स। भाई फैक्ट्स के साथ समझौता आप नहीं कर सकते हैं, फैक्ट्स को लिखना है, नोट करना है और रिवीजन करना है। तो आर.के. लेखी फॉर पब्लिक फाइनेंस। और लास्ट टॉपिक है हमारा इकोनोमेट्रिक्स, उसके लिए 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, क्या करें? इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स में से 4-5-6-7 क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बेसिक आप अगर पढ़ रहे हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स में एसपी गुप्ता की बुक है। अच्छा। उसको आप देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिए एसपी गुप्ता। हाँ, स्टैटिस्टिक्स के लिए। और इकोनोमेट्रिक्स गुजराती की बुक है। तो इसमें मेनली पास्ट ईयर पेपर को देखते हुए भी कर लिया जाए, अगर ये टेस्ट, डर्विन वाटसन टेस्ट, बस यही सब मोटा मोटी चीज आती है। मोटा मोटी आमतौर पे यही आती है, लेकिन थोड़ी सी हमको ये जेआरएफ के लिए थोड़ा सा देखना होगा। जेआरएफ के लिए मेहनत लगाना, जेआरएफ के लिए थोड़ा सा एफर्ट ये देना होगा कि जैसे सीएलआरएम हम लोग पढ़ते हैं इकोनोमेट्रिक्स में, तो सीएलआरएम की जो एजम्पशंस होती हैं, उनकी वायलेशंस क्या होती हैं, और हमारा गॉस मार्कव थ्योरम क्या है, और या फिर जैसे सीएलआरएम के 3 हेटेरोस्केडासिटी, ऑटोकोरिलेशन या मल्टीकोरिलेशन। ये अगर 3 चीज आप उसको पढ़ लिए कि उसका कॉज, तो लगभग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसका जो है कौन से टेस्ट लगते हैं, लग रहा है, ये अगर कर लिए तो इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन नहीं छूटेगा आपसे। स्टैटिस्टिक्स में बस आपको कॉजुअलिटी, लीनियर रिग्रेशन और एसोसिएशन वगैरह का पोर्शन वगैरह देख लेना है, और सिंपल डिस्पर्सन या सेंट्रल टेंडेंसी। तो कुल मिला के स्टैट, आर.के. लेखी फॉर पब्लिक फाइनेंस और एसपी गुप्ता स्टैटिस्टिक्स, गुजराती इकोनोमेट्रिक्स, और इन तीनों के लिए वही है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, पास्ट ईयर पेपर इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, इट वाज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स नेट जेआरएफ पेपर 1 एंड पेपर 2। और नितेश ने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कराया। मैं आपके साथ इनका बता दूं, इसके पेपर 2 और पेपर 1 में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। पेपर 2 में ही हैज स्कोर्ड 82 मार्क्स एंड ओवरऑल ही गॉट अराउंड 76% इन 2020। और ये जेआरएफ हैं, हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के टॉपर भी रह चुके हैं। तो नितेश, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
सो थैंक यू, इट वाज नाइस टू टॉक टू यू गाइज। तो मित्रों मैं यह बताना चाहूंगा इन समरी में, एक लाइन में, पास्ट ईयर पेपर, इधर पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, कोई भी पेपर हो, पास्ट ईयर पेपर, नोट मेकिंग एंड व्हाट सर हैज सजेस्टेड द बुक्स दैट यू आर सपोज टू फॉलो। ठीक है, बुक्स को फॉलो करना है, पास्ट ईयर पेपर को फॉलो करना है, एंड नोट मेकिंग, दीज 3 आर द ट्राइपॉड। ओके, योर ट्राइपॉड वॉन्ट वर्क इफ एनी ऑफ लेग इज डिस्टर्ब। तो आपको ये फॉलो करना है, एंड आई होप इट वॉज वेरी फ्रूटफुल। अगर आपको यह सही लगा तो आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, आप मित्रों के साथ यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड व्हाट नितेश सर हैज सजेस्टेड, यू प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। You just don't watch this video like Netflix and Amazon Prime. Okay, this is not a fun for you. So you please keep a notebook and pen, and you please make a note of all of it, and you follow regularly. I think the package sir has told that it is of around 2 to 3 months. So 2 months around. Exam is still left. Exam will be around in I think July. तो जून में यहाँ तक कि यूजीसी चेयरमैन सर ने कहा है कि जून में एग्जाम हो सकते हैं, बट देयर इज वेरी लेस चांस इन जून, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम विल बी इन जुलाई। सो स्टिल यू हैव मोर देन 2 months, सो प्लीज गियर अप योर सेल्फ, और इन कमिंग डेज यू प्लीज स्टे ट्यून। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का भी एग्जाम होने वाला है, जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन में होंगे दे आर लुकिंग फॉर द मास्टर्स एडमिशन, और नोटिस आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एंड इट वॉज ऑल अबाउट द यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स। सो इट वॉज फ्रूटफुल वीडियो। तो गाइस चलो, मीट यू, सी यू, बाय बाय, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय, सी यू सून।